all know that in the beginning I conducted one session related to asana, and now we will go for very important another session which is related to pranayama. Again, like asana, pranayama is also very famous nowadays in this world. But again, I feel there are several misunderstandings when we talk about this concept of pranayama. So whatever we want to learn today and whatever we want to learn, this must be always based on ancient literatures, because all the great masters, they have written everything very clearly. Unfortunately, modern teachers are going away from this authentic literature, and that's why there are several misunderstandings and misconceptions we have already seen when we discuss about asana. So today there is another topic, but which is very important, and that is pranayama, science of breath, and we'll try to understand something. Again, I would like to tell you that this topic is very vast, but still somewhere we try to reach up to the conclusion of the pranayama. So here, when we want to learn something about pranayama, some questions to be understood. Some questions are like, what is breath? What is prana? What is pranayama? What is the relationship between pranayama and breathing? And what are the contraindications and guidelines of pranayama? So those questions are very, very essential to be understood. So we try to see something related to those questions as well. As we know, pranayama is very ancient concept. Maybe people consider it is very modern, but it is nothing to do with modern things. It is very ancient practices. So number of ancient texts are there, number of manuscripts are there of Hatha Yoga. They discuss lucidly about this concept of pranayama. Maybe Siddha Siddhanta Paddhati, Hatha Pradipika, Dattatreya Yoga Shastra, Amruta Vakya, Hatha Tattva, number of Hatha texts are there. We got opportunity to publish, and the concept of pranayama is mentioned in that. So let us see something about this concept of pranayama. As we know, this pranayama term is combination of two terms. One is prana and another is ayama. Ayama means to control, and prana means what we will see further. So here we have to understand concept of prana and breath, or concept of prana or breathing. So let us see first what is breathing. We always say breath is life and life is breath, because this breath is the key to mystery of life. And it is true that our lifetime is measured through this breath. जीवन क्या है? पहली सांस से लेकर आखिर तक सांस में जितना भी आप कार्य करते हो, काम करते हो, उसको जीवन कहा जाता है. सो अगर ब्रीदिंग यही जीवन है, सांस लेना यही अगर जीवन है, तो इसका मतलब हम क्या ऐसा कह सकते हैं क्या कि हमारा जीवन हम सांस किस प्रकार से लेते हैं इस पर आधारित है? Can we say like that? Our whole process of life depends upon how we breathe. So we have to understand it is not only just a process to satisfy the need of the oxygen, but there are several dimensions of this breathing. If this breathing is life, then definitely we have to understand different dimensions of this life. So
it is not only for the oxygen, but you will be surprised to hear that most of the diseases can be cured through this breathing pattern if we understand what is correct breathing and how we can utilize this breathing for higher cause. So here, unfortunately, we lost this understanding or ancient understanding of the importance of breathing. In fact, it is not only related to physical aspect, not only with mental, not only emotional, not only social, but moreover, this breathing has spiritual dimension as well. But unfortunately, due to our materialistic outlook nowadays, we are so much involved in these materialistic things, we forget that breathing has spiritual dimension as well. Because ideology of scientific materialism led to rejection of spirituality. Up till now, scientific phenomena is not ready to accept role of pranayam at spiritual level. So when we talk about integrated personality, we have to consider all the aspects of personality. They are physical aspects, mental aspects, emotional aspects, social aspects, and as well as spiritual aspects. So if this breathing is so important, if our whole life process is depends upon our breathing, so can we say through breathing we can understand our inner situation? And it is true. हम किस प्रकार से सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, इस हिसाब से हमें यह पता चलेगा कि हमारी अंतर्गत परिस्थिति कैसी है. क्योंकि अगर हम देखेंगे कुछ भावनाएं ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं एंगर, गुस्सा और डिप्रेशन और फियर, when those things are going on, then easily you can witness that the flow of breathing is changing. कभी देखा है आपने, जब आप गुस्सा होते हो तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसे रहता है? कभी आपने देखा है जब आप डिप्रेस रहते हो आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसे होता है? कभी आपने देखा है कि आप खुश रहते हो तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होता है? तो आप इमोशन तो समझ नहीं सकते हो क्योंकि इमोशन ये सटल होते हैं, लेकिन अगर आप ब्रीदिंग फ्लो या ब्रीदिंग पैटर्न समझ जाओ तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस कैसे हैं. See, same thing I would like to repeat again. It is not possible to understand the emotions. जो इंसान गुस्सा होता है उसको समझ में नहीं आता है कि उसे गुस्सा है. But if you judge the flow of breathing, automatically it is possible to understand you are at what state. And that's why breathing has several dimensions. And yogic subject is discussing about those dimensions very clearly. Why it is important to witness those breathing dimensions? Because it is clear that emotions has direct relationship with breathing. ये हमने देखा अभी, जैसे गुस्सा होते हो तो फ्लो बदलता है, खुश होते हो तो फ्लो अलग रहता है, डिप्रेस होते हो तो अलग रहता है, लेकिन हम डायरेक्टली इन इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते. तो क्या हम ब्रीदिंग पे कंट्रोल करके इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं क्या? If we are not capable to control directly emotions, then if emotions are related to breathing, can we control our breathing or can we guide our breathing, by which is it possible to control our stray emotions? And answer is yes. And that's why
yogic subject is talking about different dimensions of breathing or breathing pattern. And that's why this breathing process is not only related to physical personality, but moreover, it is related to mental personality, emotional personality, and more personalities. So here, people, if you see minutely, they have different styles of breathing. I don't know up till now you observed or not, लेकिन जब आप रेलवे स्टेशन पे बैठते हो, जब आप फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पे बैठते हो, आपके पास वक्त होता है, अगल बगल में बैठे हुए लोगों को देखिएगा, वो किस प्रकार से उनका पैटर्न है, और उस पैटर्न से आपको पता चलेगा कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी इंटरनल लाइफ सिचुएशन क्या है, वो डिप्रेस है कि एंग्री है, वो फ्रस्ट्रेट है या उसकी मेंटल स्टेट क्या है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं. Because breathing irregularities are associated with specific emotional and psychosomatic disorders. It is very important fundamental principle. Some people, they breathe in slow and deeply and breathe out in a quick manner. यानी सांस काफी आराम से लेते हैं, लेकिन सांस छोड़ते वक्त जल्दी में छोड़ते हैं. For example, breathe in quick and exhale very slowly. कुछ लोगों को देखिएगा, वो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन अपने मुंह से करते हैं, माउथ से करते हैं, और कुछ लोग सांस लेते वक्त बीच बीच में रोक कर लेते हैं सांस और रोक कर छोड़ते हैं. कई लोगों की अलग अलग प्रकार की स्टाइल है, और ये सभी स्टाइल का कारण है उनकी मेंटल और इमोशनल स्टेट. तो यहां पर योग जो सब्जेक्ट है वो काफी अच्छी तरीके से ब्रीदिंग की अलग अलग डायमेंशंस को सोचता है. There are several dimensions we have to remember. For example, the ratio of inhalation and exhalation. इसका मतलब है एक रेशो है, इनहेलेशन कितने देर में करते हो और एक्सहेलेशन कितने वक्त देते हो. For example, the evenness or unevenness of the flow of air. सचमुच आपकी सांस इवन में चल रही है, ब्रीदिंग इवन है, और उसमें जर्क्स हैं, उसमें फ्लो में कुछ हर्डल्स हैं. थर्ड पॉइंट है द ड्यूरेशन ऑफ पॉज एट द एंड ऑफ एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन. सांस लेने के बाद और सांस छोड़ने के बाद, मींस इनहेलेशन के बाद और एक्सहेलेशन के बाद पॉज किस प्रकार से की जाती है. The muscles used in expanding and contracting the lungs. यहां पर जब आप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हो, उस वक्त कई स्नायु मसल्स ऐसे होते हैं जिनका कार्य ठीक से चलेगा तो ब्रीदिंग प्रोसेस प्रॉपर चलेगी. बट फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेस में रहते हो, टेंशन में रहते हो, ऐसे वक्त आप ज्यादा मसल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते हो, बिकॉज यू आर अंडर ट्रिमेंडस ग्रिप ऑफ दैट फियर, दैट इमोशंस, दैट नेगेटिव इमोशंस. यहां पर द नॉस्ट्रिल थ्रू विच द एयर प्रीडोमिनेंटली मूव्स. बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, आप तो योग से रिलेटेड हो, शायद आपको मालूम हो, लेकिन बहुत से लोगों को यही मालूम नहीं होता है कि ब्रीदिंग कभी राइट नॉस्ट्रिल से हो रही है, कभी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हो रही है. बहुत से लोगों तो यही मालूम नहीं होता है कि एक ब्रीदिंग प्रोसेस भी जीवन में चल रही है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक चलने वाली प्रोसेस है. तो कुछ लोगों को ये बात मालूम होती है, few people they know that sometimes we use the right nostril, sometimes we use left nostril. उसके बाद the frequency of breath. frequency of breath का मतलब होता है कि एक मिनट में कितने बार आप ब्रीदिंग करते हो. इसके ऊपर भी आपको पता चलता है कि आप इमोशनल कौन से लेवल पे हो. जो आदमी अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर है, वो एक मिनट में कितने बार कर सकता है ब्रीदिंग. एक आदमी खुश है तो वो कितने बार करता है. एक आदमी नॉर्मल है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कितने बार ब्रीदिंग कर सकता है. ये सभी बातें यहां पर देखी जाती है. फिर है द फोर्स ऑफ एक्सहेलेशन. किस प्रकार से एक्सहेलेशन होता है,
तो कई बातें, different dimensions are there, and we have to understand those dimensions when we talk about yoga. And that's why I told it is not only related to oxygen, but several dimensions are there, and yoga is the subject which is talking about, because pranayama is very ancient and different periods came in Indian history, and the structure of pranayama changed in different stages. Every period we may find different changes are there as far as pranayama is concerned. So what is the first stage? Sutra period. In Sutra period, pranayama was only the part of some religious ceremony. People, they were using pranayama only for religious purposes, and in that period there was no mention about Puraka and Rechaka. What is Puraka? Puraka and Rechaka, these are two special terms they use in pranayam. पूरक मीन्स इनहलेशन, सांस को लेना, इसको योगिक परिभाषा में पूरक कहते हैं, और सांस को छोड़ना, इसको योगिक परिभाषा में रेचक कहते हैं. आज हमें पूरक और रेचक ये संकल्पना कम से कम हमने सुनी है, लेकिन उस वक्त फर्स्ट स्टेज में, सूत्र पीरियड में, ये दोनों टर्म्स नहीं थी. जैसे हम देखेंगे कि अश्वलायन श्रौर सूत्र और बौद्धयान धर्म सूत्र, इनमें उन्होंने ये भी कहा था कि इस प्राणायाम के साथ आपको मेंटल लेवल पर गायत्री मंत्र को भी रिसाइट करना है, और ये आप गायत्री मंत्र टू बी मेंटली रिसाइटेड ड्यूरिंग द ब्रेथ होल्डिंग और कुंभक. पूरक और रेचक के बारे में नहीं था, पर आपको होल्डिंग के बारे में उस वक्त बताया गया था, और उस वक्त आपको गायत्री मंत्र का उच्चारण करने के लिए भी कहा गया था. उसके बाद दूसरा जो पीरियड आया उसको कहते हैं स्मृति पीरियड, और उस स्मृति पीरियड में प्राणायाम के साथ गायत्री का कहना और गायत्री मंत्र का कहना ये कंपलसरी माना गया था, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति या मनुस्मृति. और इसमें मनुस्मृति में खास जानकारी दी गई थी कि प्राणायाम इज फॉर एलिमिनेशन ऑफ द मॉर्बिडिटीज ऑफ द सेंसेस एंड क्लींजिंग oneself of the sins. प्राणायाम क्यों करना है? सिर्फ लंग्स कैपेसिटी के लिए नहीं, जो आज मॉडर्न लोग समझते हैं. हमारी जितनी भी मॉर्बिडिटीज है, अशुद्धि को दूर करने के लिए प्राणायाम करने के लिए कहा गया था दूसरे स्टेज में, स्मृति पीरियड में. तीसरा स्टेज आया जिसको कहा गया पौराणिक पीरियड. पौराणिक पीरियड में क्या कहा गया? इट एंटर्स इन स्पिरिचुअल और मिस्टिकल फील्ड. इसको स्पिरिचुअल एक दर्जा दिया गया और मिस्टिकल एक दर्जा दिया गया. इट इज नॉट अटैच्ड टू एनी रिचुअल. इन फर्स्ट स्टेज इट वाज पार्ट ऑफ रिचुअल, बट इन थर्ड स्टेज इट वाज नॉट पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिचुअल्स. इट वाज टू बी accompanied by mental recitation of प्रणव और ओम. सेकंड स्टेज में गायत्री था, लेकिन थर्ड स्टेज में उसको कहा गया कि when you perform pranayam, at that time try to recite Om. Pranava means Om. So you can chant at your mental state. And time units for Puraka, Kumbhaka and Rechaka were also introduced. एक विशिष्ट काल के लिए आपको पूरक उतने वक्त के लिए करना है, कुंभक इतने वक्त के लिए करना है, और रेचक इतने वक्त के लिए करना है, इसके बारे में जानकारी मिलती थी. फोर्थ स्टेज जब आया योग सूत्र, और हमें मालूम है कि पतंजलि, a great master 2000 years back, he has written Patanjali Yoga Sutra, and in that this pranayam becomes an independent part of psychophysical science. पतंजलि ने क्या कहा? It is related to psychophysical, means मनोकायिक. आप शरीर द्वारा उसको कर सकते हो, लेकिन इसका परिणाम आपको शारीरिक तौर पर करने के बावजूद भी परिणाम आपका मन के ऊपर होगा. पतंजलि who discarded even recitation of pranava from the technique of pranayam. पतंजलि ने ये नहीं कहा कि प्राणायाम करते वक्त आप प्रणव या ओम का उच्चारण करो. Although the act is physical, it has psychophysiological effects as stated by him. And he explained 4 different varieties of pranayams, namely Bahya, Abhyantara, Stambha and Chaturtha.
These four techniques are related to the breath holding, the कुंभक. मैंने आपसे कहा कि पूरक का मतलब है इनहेलेशन, रेचक का मतलब है एक्सहेलेशन और कुंभक का मतलब है होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ. ये कुंभक स्टेट के बारे में पतंजलि ने क्या कहा है? 4 प्रकार की वैरायटीज बताई है, बाह्य, अभ्यंतर, स्तंभ और चतुर्थ. Then fifth stage came, which was हठ योगिक पीरियड, और यही वो पीरियड है जहां पर इंटरनल कुंभक को, अंतर कुंभक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया. और इसका कारण भी खास था, क्योंकि कुंभक स्थिति में हम प्राण को पकड़ना चाहते थे. इन कुंभक स्टेट आफ्टर इनहेलेशन we wanted to take on hold the prana, and with that prana we can do miracles. And that's why in hatha yogic period internal kumbhaka is mentioned, and there are basically 8 varieties of this kumbhaka or 8 varieties of pranayamas mentioned. प्राणायाम और कुंभक इन दोनों टर्म्स को सिनोनिम के स्वरूप में जाना जाता है, क्योंकि प्राणायाम का उद्देश्य ही प्राण को शरीर के अंदर रोकना है. प्राणायाम, द एम ऑफ प्राणायाम इज होल्डिंग ऑफ द प्राण इनसाइड योर बॉडी, एंड इन कुंभक स्टेज वी आर होल्डिंग द प्राण इनसाइड द बॉडी. दैट्स व्हाई प्राणायाम एंड कुंभक बोथ आर सिनोनिम्स. प्राणायाम के कई सिनोनिम्स हैं, हम आगे के पार्ट में देखेंगे, लेकिन कुंभक ये काफी इंपॉर्टेंट सिनोनिम है. यहाँ पर जो 8 प्रकार की वैरायटीज बताई गई है, वो वैरायटीज करते वक्त या 8 प्रकार के प्राणायाम जो बताए गए हैं, वो करते वक्त एक रेशो भी बताया गया है, और रेशो है 1:4:2. What is the meaning of this 1:4:2? It is a ratio for Puraka, Kumbhaka and Rechaka. If you perform Puraka for 1 second, say for example, then Rechaka is double than Puraka, which is 2 seconds, and holding of the breath or Kumbhaka is double than Rechaka, which is 4. So 1:4:2 is the ratio. But if you go directly today for that ratio, it may harm you. अगर डायरेक्टली ये रेशो को जाते हो तो आपको काफी कठिनाइयां हो सकती है, काफी तकलीफ भी हो सकती है. इसलिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में जाना पड़ता है, और ये सीक्वेंस में कैसे जाना है ये भी हम अगले भाग में देखेंगे. यहाँ पर बताया गया कि जब हम ये कुंभक स्थिति करते हैं, उस वक्त हमें 3 बंध को करना अति आवश्यक है. अगर बंध हम नहीं करेंगे, if we don't apply these bandhas, then chances of injury is there. That's why 3 bandhas are also very important, which are मूल बंध, जालंधर बंध and उड्डीयन बंध. मूल बंध हम एनस रीजन पे लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एनल मसल्स. जालंधर बंध हम थ्रोट रीजन पे, गले के पास लगाते हैं, और उड्डीयन बंध हम पेट के पास लगाते हैं. तो अगर कुंभक करना है तो जालंधर, मूल और उड्डीयन तीनों बंध करना आवश्यक है. ये सभी जानकारी हमें हठयोग पीरियड में मिली, इसलिए हठयोग पीरियड ये गोल्डन पीरियड है एज फार एज नॉलेज ऑफ प्राणायाम इज कंसर्न. तो यहाँ पर 8 प्रकार की वेराइटीज दी गई है. कौन से 8 प्रकार की वेराइटीज हैं? अलग अलग प्राणायाम है. यहाँ पर थोड़ी सिर्फ थ्योरेटिकल जानकारी में दे रहा हूं, और आई एम श्योर that someone is conducting practical sessions of pranayam for you. Definitely आपको टीचर्स प्राणायाम बता रहे हैं प्रैक्टिकल तौर पर यहाँ पर थोड़ी जनरल एक मैं थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन आपको दूंगा. ये जो अष्ट कुंभक या 8 प्रकार के प्राणायाम जो बताए गए हैं, पहला है सूर्य भेदन. मैंने आपको कहा प्राणायाम क्या है, इट इज 3 स्टेजेस आर देयर. पूरक इनहेलेशन, कुंभक रिटेंशन, रेचक एक्सहेलेशन. तो यहाँ पर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कौन से नॉस्ट्रिल से होता है या मुंह से होता है क्या, ये हमें देखना है. मैंने आपसे कहा कि ब्रीदिंग के लिए हम अलग अलग प्रकार के नॉस्ट्रिल इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य भेदन, इनहेल थ्रू राइट नॉस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल. उज्जाई, इनहेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल्स
exhale through left nostril. Shitali, inhale through tongue, exhale through both nostrils. Shitkari, inhale through mouth, exhale through both nostrils. भस्त्रिका एक प्राणायाम है, अलग अलग प्रकार की वेराइटीज अलग अलग ग्रंथों में दी गई है। 3-4 प्रकार की वेराइटीज यहाँ पे दिखती है, जैसे हठ प्रदीपिका की वेराइटी अलग है, घेरंड संहिता की अलग है और अलग अलग ग्रंथों की है। तो छठा है भ्रामरी, इसमें इनहेल थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल्स एंड एक्सेल अगेन थ्रू बोथ नॉस्ट्रिल्स। मूर्छा और प्लाविनी ये काफी एडवांस प्रकार के प्राणायाम है, लेकिन आप भ्रामरी तक प्राणायाम की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर मार्गदर्शन अगर ना हो, इफ देयर इज नो प्रॉपर गाइडेंस, बी केयरफुल, डोंट परफॉर्म प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम में आपको इंजुरी हो सकती है, प्रॉपर मार्गदर्शन की आपको आवश्यकता है। तो इस प्रकार के 8 प्राणायाम यहाँ पर हठ ग्रंथों में दिए गए हैं। ये नाड़ी जो मैंने कहा, ये जो नॉस्ट्रिल है, इसको योगिक परिभाषा में एक्चुअली अलग टर्म से जाना जाता है और उसको कहा जाता है नाड़ी। जब मैं कहता हूं राइट नॉस्ट्रिल, तो उसको योगिक टर्म में पिंगला नाड़ी कहा जाता है। जब मैं कहता हूं लेफ्ट नॉस्ट्रिल, इसको कहा जाता है ईड़ा नाड़ी। दरअसल 3-4 नाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ईड़ा जो लेफ्ट है, जो है पिंगला जो राइट है, और दोनों के बीच में एक है, उसको कहा जाता है सुषुम्ना, और चौथी नाड़ी जिसको कहा जाता है कुंडलिनी। ये 4 नाड़ियां बहुत ही आवश्यक है। वैसे तो शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, देयर आर 72,000 नाड़ीज आर देयर, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू नो ऑल द नाड़ीज। अभी तक कुछ 20, 22, 24 नाड़ियों का पता चला है, उसमें से भी 10 नाड़ियां, 10 नाड़ीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे पूरे शरीर में कार्य करती है। इनका कार्य क्या है? ये जो प्राण हम अंदर ले लें शरीर में, ये प्राण को पूरे शरीर में भेजना, यह काम इस नाड़ियों का है। और थोड़ी सी नाड़ियों की जानकारी भी हम लेंगे। देयर आर सेवरल नाड़ीज, बेसिकली 10-12 नाड़ीज आर देयर विच आर up till now we know। तो यहां पर राइट साइड में आपके जो नाड़ियां हैं, वो है हस्त जिह्वा, जो आपके राइट आई के पास है। पूषा is related to right ear, pingala which is right nostril by which we perform सूर्य भेदना, जेनिटल के पास कुहू है, एनस के पास शंखिणी है, बिलो नेवल कुंडलिनी है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुंडलिनी यह विषय काफी बड़ा है। उसके बाद आपके मुख में, माउथ में अलम्बुषा है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जो है उसको ईड़ा कहा गया, लेफ्ट ईयर के पास यशस्विनी है, लेफ्ट आई के पास गांधारी है, और ईड़ा और पिंगला के बीच में जो है वो सुषुम्ना है। ये कई प्रकार की नाड़ियां हमारे शरीर में है, और ये 8 प्राणायाम करने के बाद जब आप प्राण को अंदर लेते हो, तो इन नाड़ियों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन नाड़ियों से ही प्राण फ्लो होता है। आपको मैं एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अप टिल नाउ वी नो ओनली 8 टाइप्स ऑफ प्राणायाम। हमें अभी तक सिर्फ 8 प्रकार के ही प्राणायाम मालूम है, लेकिन कार्य करते हुए, कई मैन्युस्क्रिप्ट पे जब कार्य कर रहा था मैं, तो यू विल बी सरप्राइज्ड दैट एक मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी मिली मुझे, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको बताई है एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, एक मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी मिली जिसका नाम ही कुंभक पद्धति था, और यू वोंट बिलीव, इसमें 50 से ज्यादा प्राणायाम के बारे में कहा गया है। मोर देन 50 टाइप्स ऑफ प्राणायाम आर मेंशन्ड, और दिस इज द ओनली टेक्स्ट अप टिल नाउ वी फाउंड इन विच such 50 or more than 50 pranayamas are mentioned। और इसमें एक प्राणायाम तो ऐसा है जिसको मेरु कुंभक या मेरु प्राणायाम कहा गया है। There are 47 stages
एक्सप्लेन्ड इन दिस, और प्राणायाम करते वक्त कौन सी अनुभूति साधक को होती है, what experience साधक में get, that we can easily witness written in this kumbhaka paddhati, and that's why we have to understand proper understanding of this. So ये है प्राणायाम का ancient understanding. Now ये जो प्राण है ये क्या है हमें देखना है, क्योंकि हम तो ये टेक्निक ब्रीदिंग से करते हैं, तो ये टेक्निक श्वास से होती है, तो इसको फिर श्वासायाम क्यों नहीं कहते, इसको प्राणायाम ही क्यों कहते हैं? अगर प्राणायाम कहते हैं और श्वासायाम नहीं कहते हैं, तो क्या प्राण और श्वास में कुछ अंतर है? और अगर ये अंतर है, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राण एंड ब्रीदिंग श्वास, तो हमें ये समझना होगा. सो लेट अस सी व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राण. प्राण का मतलब क्या है? तो यहां पर ऋग्वेद में प्राण का मतलब सिर्फ कहा गया है ब्रीदिंग, लेकिन अथर्ववेद में उसको कहा गया कि इट इज अ क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. प्रश्न उपनिषद में कहा गया है कि प्राण ये शरीर में घूम रहा है लेकिन मन के साथ. इट मीन्स दैट प्राण एंड माइंड बोथ आर वर्किंग टुगेदर. It means, can we say that if prana and mind working together, if our purpose is to stabilize mind, we cannot stabilize mind directly. If we stabilize prana, can we stabilize mind? And answer is yes. And that's why pranayama is important, because unless and until if we are not capable to stabilize mind, we are not capable to achieve the success. मुंडक उपनिषद कहता है इट इज अ मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल. मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? ये मैनिफेस्ट हुआ है. किससे हुआ है? अगर अथर्ववेद और मुंडक उपनिषद दोनों को अगर कंबाइन करे तो इसको क्रिएटर कहा गया है, और ये मुंडक कहता है कि मैनिफेस्ट प्रिंसिपल है. इसका मतलब ये उस क्रिएटर का ही मैनिफेस्टेशन है. ये वह क्रिएटर जो इस संसार की उत्पत्ति का कारण है, स्थिति का कारण है, लय का कारण है, उसका ही मैनिफेस्टेशन है. इसका मतलब ये प्राण, ये लाइफ फोर्स है, ये प्राण एक शक्ति है, ये हमें समझना होगा. उसके बाद केनोपनिषद में क्या कहा है कि ये प्राण और ब्रह्मन अलग है. ब्रह्मन ये अल्टीमेट प्रिंसिपल है, हमें मालूम है. इसको कॉन्शियसनेस कहते हैं, या इसको गवर्निंग पावर कहते हैं, या क्रिएटर कहते हैं. लेकिन इसमें कुछ फर्क है, ऐसा केनोपनिषद कहता है. प्राण एंड लाइफ एनर्जी रिप्रेजेंट द फोर्स. इस प्राण में एक फोर्स है, एक एनर्जी है, और ये एनर्जी कहां से आई है? इस ब्रह्मन से आई है. तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि प्राण ये एनर्जी है, और यही एनर्जी हमारी लाइफ स्पैन को डिसाइड करती है. अगर हम प्राणायाम करें और प्राण को अगर पकड़ लें तो हम प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं. लेकिन योगिक लिटरेचर क्या कहता है? क्योंकि हमारा टॉपिक योगिक रिलेटेड है, तो पातंजलि योग सूत्र कहता है कि ये प्राण ही इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का कारण है. ये प्राण ही लाइफ फोर्स है, और ये प्राण ही अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता होगा तो इस प्राण को पकड़ के रखना चाहिए. अगर ये प्राण चला गया तो मेरा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बंद हो जाएगा, और अगर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बंद हो गया तो इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड डेथ. एंड दैट्स व्हाई प्राण इज वेरी वेरी इसेंशियल. घेरंड संहिता क्या कहती है? घेरंड संहिता कहती है इट इज जस्ट ब्रेथ. लेकिन जब वो कहती है प्राणाम सूर्यनाकर्ष, मींस ब्रेथ टेकन इन थ्रू राइट नॉस्ट्रिल, इसको हठ प्रदीपिका ऐसा कहता है. राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेना का मतलब प्राण है. लेकिन सांख्य कारिका एक काफी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है. ये सांख्य तत्व ज्ञान से रिलेटेड है, और सांख्य तत्व ज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि पातंजल योग सूत्र का बेस ही सांख्य तत्व ज्ञान है. इसके लिए सांख्य तत्व ज्ञान हमें समझना आवश्यक है. सांख्य तत्व ज्ञान का एक प्रमाणभूत ग्रंथ है जिसको कहा गया सांख्य कारिका, और सांख्य कारिका कहता है प्राण इज अ लाइफ फोर्स. तो हमें यह बात समझ में आ गई कि प्राण में और ब्रीदिंग में फर्क है.
क्या फर्क है? एक आसान फर्क आपको बता देता हूं. What is the difference between electricity and wire? Wire is the vehicle of electricity. Similarly, breathing is the vehicle of prana. प्राण एक ऐसी शक्ति है जो यूनिवर्सल पावर है, जो यूनिवर्सल पावर पूरे दुनिया को गवर्न करती है. Every function is possible only and only because of prana. And breathing is what? Breathing is a vehicle. Through this vehicle, we take prana inside. Through this vehicle, prana is going outside. So that's why if we control this prana, then automatically we can control this life energy and we can do miracle. So all the ancient literature, they are talking about this prana concept very clearly. So what we understood, it means that every action in this universe is governed by prana, and that's why prana is called universal energy. अब जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में कई प्रकार के फंक्शन करती है. कई प्रकार के फंक्शन क्या करती है? उसको 10 प्रकार के नाम दिए गए हैं. प्राण ये एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन काम के हिसाब से हमने उसको ढाल दिया है. ये बात को समझना काफी आवश्यक है, अदरवाइज इट में क्रिएट कंफ्यूजन. अगेन आई रिपीट, प्राण इज द ओनली पावर is governing everything, but as there are different works to be done, we name this prana differently. Example देता हूं. For example, Dr. Vishnu sir is organizing this webinar. He is the organizer. But when Dr. Vishnu is driving the car, he is not organizer. Same Dr. Vishnu is driver. When Dr. Vishnu is playing any game, he is a player. He is not a driver, because role is different, but person is same. So although person is same, but as per the work, we name differently. Similarly, prana shakti is same, but as per the name, as per the work, we name differently. I hope you understood. So there are 5 main functions and 5 sub functions are there, and those main functions are called as prana, apana, samana, vyana and udana. These are 5 main pranas, they say, because these are 5 functions. What is the function of prana? The movement of prana is upward or forward, and the function is exhalation and inhalation. What is the function of apana? It is a downward function and located in lower parts. For example, urination. ये सभी जो functions है ये अपान करता है. samana has neither downward function nor upward function, but it is responsible for the distributing food and juices equally throughout the body. शरीर को जहां जहां जूसेस की आवश्यकता होती है, आप जो खाते हो उसमें से जो जूस निकलता है, वो जूस को समान तौर पर बॉडी में डिवाइड करना, ये काम समान का है. Vyana responsible for the function of entire body. Some more functions are there going on in your body. That is the work of Vyana. And what is the function of Udana? Related to upward function and is responsible for passing of the prana from the body at the time of death. जब डेथ होती है तो ये जो शक्ति है शरीर से बाहर निकलती है, वो शरीर को बाहर निकालने का काम उदान का है. So there are 5 different functions which are called main functions, and the name of those 5 main functions called as prana, apana, samana, vyana and udana. And 5 more functions are there. These are called sub functions or sub pranas. They are called naga, promote movements. Kurma shakes the body and causes twinkling of the eyes. Krukara causes hunger. Devadatta causes laziness. Dhananjay causes nadagosha. Nadagosha means ये जो आप बोलते हो इस हिसाब से. तो basically 10 functions are there: prana, apana, samana, vyana, udana.
नाग, कूर्म, क्रूकर, देवदत्त और धनंजय। तो ये सभी फंक्शंस जो शरीर में हो रहे हैं वो सभी फंक्शंस इस प्राण शक्ति के कारण ही हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि प्राण ये काफी वाइड रेंज है। प्राण इज यूनिवर्सल पावर because it is manifested principle from this ultimate, and why it is life force, because everything which is going on in our body as well as everything which is going on in the universe is governed only and only because of this prana. That's why what we understood, it has wide range of application from mere breath to the subtle cosmic principle. तो यहां तक हमने देखा एंशंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्राण, प्राण के डेफिनेशंस, प्राण की इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन ब्रेथ एंड प्राण। अभी हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्राणायाम। This pranayam is a technical term in yoga and has defined in different texts differently. ये प्राणायाम के कई सिनोनिम है और इसलिए कभी-कभी गलत फहमी होती है। There are different misunderstandings about this pranayam because number of synonyms are there in different texts. So it is, some texts they say prana pidana, some say prana nirodha, some say prana rodha, prana sanyama, prana nigraha, prana महानिरोध, और कुछ टेक्स्ट कहते हैं कुंभक। ये जो कुंभक टर्म है ये हमें मालूम है, मोस्टली कुंभक ये टर्म फेमस है, तो थोड़ी सी इस कुंभक के बारे में जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। What is कुंभक? It is called control of respiration for a shorter or longer duration. कुंभक में क्या करते हो आप होल्डिंग करते हो इस रेस्पिरेशन को। सो कुंभक हैज स्पेसिफिक मीनिंग। कुंभक is derived from the Sanskrit root kumbha, and kumbha means water pot. जिस प्रकार से इस वाटर पॉट में हम पानी जमा करके रखते हैं उसी प्रकार से lungs hold the air like kumbha, and that's why this kumbhaka term is used in ancient literature. पातंजलि योग सूत्र भी प्राणायाम के बारे में कहता है तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्राणायाम। क्या डेफिनेशन है? When the stability in posture has been secured, the pause in the movement of inhalation and exhalation is pranayam. इसका मतलब क्या है? सांस को लेना, पूरक, सांस को छोड़ना, रेचक, इसके बीच में जो पॉज आप करते हो, गतिर विच्छेद, इसकी गति को जब आप रोकते हो उसको प्राणायाम कहा गया है, और पतंजलि ने काफी खूबसूरत तरीके से इसको समझाया है। तो प्राणायाम इज प्रैक्टिस विथ 3 stages as I told you. पूरक means inhalation, कुंभक means retention, और रेचक means exhalation. Those 3 stages are there. और ये stages में जैसे जैसे परिवर्तन होता है उस प्रकार से इस स्टेजेस को समझा जाता है। पूरक, कुंभक और रेचक में एक रेशो है जो 1:4:2 है, ये हम आगे जाकर और देखेंगे। बट जब हम कुंभक के बारे में कहते हैं तो कुंभक को अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक यानी इंटरनल रिटेंशन ऑफ ब्रेथ और एक्सटेंशन रिटेंशन ऑफ ब्रेथ और प्राण के तौर पर जाना जाता है। प्राणायाम में जो नॉर्मल ब्रीदिंग का टाइम है और नॉर्मल ब्रीदिंग में जो ब्रीदिंग का टाइम है ये दोनों अलग अलग होते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम कुंभक नहीं करते, लेकिन प्राणायाम में कुंभक स्टेट ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो रेस्पिरेशन चेंज हो रहा है, ये जो सांस का पैटर्न चेंज हो रहा है, बेसिकली इसके 3 कारण है, ये हमें समझना है। Why this respiration is changing on? There are 3 reasons we have to understand. The first reason is called biological factor. Second is called emotional factor, or third is called volition factor.
बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या है? जब कोई मेटाबॉलिक चेंज आपके बॉडी में होता है तो ऑटोमेटिक आपका रेस्पिरेशन साइकिल चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठे हो और तुरंत आप उठते हो और घर के बाहर चले जाते हो चलने के लिए, या आप भागते हो, ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण आपका ब्रीदिंग चेंज होता है। इमोशनल फैक्टर का मतलब क्या है? जब कोई इमोशनल ग्रिप, आप गुस्सा हो गए हो, आप फ्रस्ट्रेट हुए हो, आप डिप्रेस्ड हुए हो, कॉन्फ्लिक्ट है आपके मन में, तो ऑटोमेटिकली इमोशनल फैक्टर है और इसके कारण आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो रहा है। और तीसरा है वोल्यूशन फैक्टर। वोल्यूशन का मतलब है यू कैन चेंज योर ब्रीदिंग फैक्टर एज पर योर विश। So there are three reasons for changing of the respiration cycle. One is biological, another is emotional, and third is volition. लेकिन यहां पर याद रखना होगा कि बायोलॉजिकल फैक्टर और इमोशनल फैक्टर ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है, आप कुछ करते नहीं हो, it is changing automatically in your body. But volition means what? You change this respiration as per your wish. और ये volition factor ही प्राणायाम कहा गया है। If you know how to change this volition factor, if you know how to change your breathing pattern, you can do you can get miraculous advantages. कौन से एडवांटेज आप लेते हो? अगर इस ब्रीदिंग साइकिल को कंट्रोल कर लिया आपने आपके हिसाब से, तो जब जब इमोशनल ग्रिप में आप होगे, जब जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आपको होंगे, उस वक्त आपको इजीली यू कैन कंट्रोल दोस इमोशनल फैक्टर्स एंड बायोलॉजिकल। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत आप गुस्सा हो गए तो तुरंत प्राणायाम के लिए बैठ जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत बायोलॉजिकल रीजन है तो प्राणायाम के लिए बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर कंटिन्यूस आप प्राणायाम करोगे तो जब जब जीवन में इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगे, जब जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगे, उस वक्त आपको कठिनाई महसूस नहीं होगी। यू वोंट फील एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इट इज इजी फॉर यू टू अचीव द कंट्रोल ओवर दोज। सो यहाँ पर प्राणायाम में जो ब्रीदिंग करते हैं वो हमने देखा है कि 4 स्टेजेस है इसमें। 3 स्टेजेस हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। और चौथी वाली जो स्टेज है वो बाह्य कुंभक है, लेकिन हठयोग पीरियड में अंतर्गत कुंभक को ज्यादा नवाजा गया है। दे हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस फॉर दिस। तो यहाँ पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राणायामिक ब्रीदिंग एंड नॉर्मल ब्रीदिंग? अगर नॉर्मल ब्रीदिंग आप देखोगे तो 1 मिनट में कॉमन जो हेल्दी पर्सन है वो 15 बार अप्रोक्सीमेटली इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता है। लेकिन प्राणायामिक ब्रीदिंग में ऐसा नहीं है। समझ लो, अगर एक रेशो है 1:4:2 और अगर आप इनहेलेशन 5 सेकंड के लिए करते हो, पूरक 5 सेकंड के लिए करते हो, तो रेचक ये डबल है इसलिए 10 सेकंड लगेंगे, और कुंभक ये रेचक से डबल है इसके लिए 20 सेकंड लगेंगे। अगर 20 सेकंड एक साइकिल के लिए लगेगा तो 1 मिनट में आप 2 या 3 ही बार प्राणायाम कर सकते हो। whereas you perform normal breathing 15 times in a minute, whereas you perform pranayamic breathing just for 2 or 3 times, because in pranayamic breathing you perform kumbhaka, in normal breathing you are not performing kumbhaka। तो यहाँ पर जो रेशो है 1:4:2 ये बड़ा आवश्यक है। लेकिन इस बात को याद रखना है कि तुरंत आज बैठ गए और 1:4:2 का रेशो आपने लिया तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाला है, बिकॉज योर इंटरनल स्टेट इज नॉट प्रॉपर। तो यहां पर समझना होगा ये 1:4:2 रेशो तक हमें कैसे जाना है, ये काफी आवश्यक है। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे इस रेशो से कैसे जाना है। हमने देखा, अगेन आई रिपीट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशो? द रेशो इज कॉल्ड 1:4:2। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1 is पूरक
4 is कुंभक, 2 is रेचक। अगर सांस लेने के लिए 1 सेकेंड लगता है तो 4 सेकेंड रोकना है और 2 सेकेंड एक्सलेशन के लिए आपको इस्तेमाल करना है। रेचक इज ऑलवेज डबल देन पूरक एंड कुंभक इज ऑलवेज डबल देन रेचक। इसलिए ये जो रेशो हुआ वो क्या हुआ, 1:4:2। ये फाइनल रेशो है, लेकिन इस रेशो तक जाने के लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस लगेगी और इसकी एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस मैं आपको अभी समझा रहा हूं। जैसे शुरुआत में आप बैठ गए, पहले ही दिन आपको 1:4:2 नहीं करना है। पहले क्या करना है आपको, सिर्फ यू हैव टू सिट प्रॉपरली एंड ट्राई टू गेट ब्रेथ अवेयरनेस। मे बी this process you should continue for 2 to 3 weeks. Once you are capable to get breath awareness, then go in second stage, and that is only Puraka and Rechaka, no Kumbhaka. That process is, अगर 1 सेकेंड आप इनहेलेशन करते हो तो 2 सेकेंड रेचक करना है। अगर 5 सेकेंड इनहेलेशन करते हो तो 10 सेकेंड रेचक करना है। द रेशो शुड बी बिटवीन पूरक एंड रेचक शुड बी 1:2। ये 1 से 2 महीने तक इस रेशो को आप ध्यान पूर्वक देखना है। अगर ये रेशो प्रॉपर हो गया तो उसके बाद पहली बार, फर्स्ट टाइम यू हैव टू इंट्रोड्यूस कुंभक। Kumbhaka is holding. What is the ratio you have to apply? It is just 1:1:2। यानी अगर 5 सेकंड के लिए आपने इनहेल किया है तो कुंभक भी 5 सेकंड के लिए ही होगा और एक्सलेशन ये 10 सेकंड के लिए होगा। ये प्रोसेस आपको 2 से 4 महीने तक कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं एक दिन में किया और अगले स्टेज में गए। इट मे क्रिएट प्रॉब्लम टू यू देन। And then after 4 months, maybe little addition in Kumbhaka state, 1:2:2. For example, 5 seconds you take for Puraka, then 10 seconds for Kumbhaka and 10 seconds for Rechaka. You should continue this for 3 to 4 months. If you feel you are not still comfortable, you can go 1 more month, no problem. Then 1 more addition, 1:3:2. If you perform for 5 second Puraka inhalation, try to hold for 15 seconds and try to exhale for 10 seconds. You continue this 4 to 6 months or more months if you feel, and then you reach up to 1:4:2. लेकिन remember, ये साइड में जो येलो आपको एरो दिख रहे हैं उस प्रकार से आपको जाना है, लेकिन रेड एरो का भी ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी स्टेज में आपको प्रॉब्लम लगे तो आपका ईगो मत लाइएगा, तुरंत पहले वाले स्टेज पर जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एट 1:3:2 and you feel some type of problems, some type of suffocation, some internal problems. Don't hesitate to go to 1:2:2. Still at that level you feel some problems, again don't put your ego. There is nothing related to competition. कोई competition नहीं है, किसी को कुछ बताना नहीं है। Then go for 1:1:2. So try to judge your each and every state, because if you go fast and you are not well prepared, it may create problem at your internal level. एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि आप श्वास को, प्राण को, एयर को अंदर बंद करके रखते हो और एयर हमेशा बाहर जाने की कोशिश करती है। एयर बाहर जाने के 2 पैसेज होते हैं, एक तो एनस रीजन से, बिलो रीजन, और दूसरी है थ्रोट रीजन से, गले से। तो दोनों जगह पर बंध लगाया जाता है। जो मैंने कहा, जब कुंभक करते हो प्राण का फोर्स ट्रिमेंडस रहता है, एयर का प्रेशर ज्यादा रहता है, और अगर इंटरनल कैपेसिटी प्रॉपर नहीं है तो या तो नीचे से
एयर जा सकती है फोर्सफुली या ऊपर से फोर्सफुली जा सकती है, इसके प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके लिए मूल बंध लगाना है, उसके बाद ऊपर जालंधर बंध लगाना है गले के पास, और फिर उड्डयन बंध लगाना है फायदे के लिए। तो इस प्रकार से आपको करना है। अगर बंध नहीं लगाओगे और प्रेशर ज्यादा होगा तो इट में डैमेज सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर हेड। एग्जांपल देता हूं, अगर जो कुकर होता है, आप खाना पकाते उसमें, उसकी सीटी अगर बजने ही न दी और प्रेशर ज्यादा बढ़ गया अंदर, तो कुकर का क्या होगा ये सब जानते हो। इसलिए प्राणायाम करते वक्त बंध को ठीक से समझना है और तभी कुंभक करना है। ये बंध और ये प्राणायाम की विधि स्टेप बाय स्टेप समझना काफी आवश्यक है, और इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। जब आप करते हो प्राणायाम तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शुरुआत आपको मूल बंध से करनी होगी। यू ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द एनल स्फिंक्टर्स, देन गो फॉर इनहेलेशन। सेकंड स्टेज इज इनहेलेशन, पूरक। जैसे ही पूरक इवननेस में खत्म होता है, आप कुंभक स्टेज में जाते हो। कुंभक का मतलब है होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ। जैसे ही आप होल्ड करते हो ब्रेथ को, उसके बाद मूल बंध तो आप कर ही रहे हो, मूल बंध खत्म होता है और कुंभक स्टेट में आप रहते हो। जैसे ही कुंभक स्टेट या होल्डिंग ऑफ द ब्रेथ है, उसके बाद आपको थ्रोट रीजन पे जालंधर बंध करना है। जैसे ही जालंधर बंध करते हो, उसके बाद आपको उड्डयन बंध करना है। ये पूरी प्रोसेस आपको मेंटेन करनी है एज पर यूर कैपेसिटी, एज पर यूर लिमिट। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। अगर कंपटीशन करने की कोशिश करोगे तो यू मे गेट ट्रबल्स। उसके बाद जब आप छोड़ना चाहते हो प्राणायाम, तो सबसे पहले आपको उड्डयन बंध रिलीज करना है, उसके बाद जालंधर बंध रिलीज करना है। जैसे ही जालंधर बंध रिलीज होता है, आप कुंभक स्टेट को रिलीज करते हो और आप एक्सलेशन करना शुरू करते हो, और उसके बाद आखिर में जाकर मूल बंध आप छोड़ते हो। तो व्हाट इज द प्रोसेस? When you try to apply this whole process of pranayam, start with Mula Bandha, then inhalation. This is after completion of inhalation, it is Kumbhaka state. In Kumbhaka state, then you have to apply Jalandhara Bandha. Then at one side Mula Bandha is there, at other side Jalandhara Bandha is there. Then apply Uddiyana Bandha at stomach level. You continue this. Pause, you continue this Kumbhaka state as per your limit, then go for releasing of Uddiyana Bandha, then go for releasing of Jalandhara Bandha, then release the Kumbhaka, then exhalation with the ratio, and finally release the Mula Bandha. When you perform pranayam with Kumbhaka, you have to remember this process. So when you perform pranayam, it is very powerful activity, but you have to take proper precautions, and there are some contraindications of pranayam. So which are those contraindications of pranayam? One does not exhale through mouth. कुछ प्राणायाम है जिसमें आप सांस अंदर लेते हो मुंह से, लेकिन ऐसा एक भी प्राणायाम नहीं है मुंह के माध्यम से, थ्रू माउथ यू एक्सेल। सो रिमेंबर, दिस इज contraindication. जब बायोलॉजिकल और इमोशनल नीड है, उस वक्त प्राणायाम नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़े गुस्सा हो आप तो तुरंत प्राणायाम करो, बड़े डिप्रेस हो एंड गो फॉर प्राणायाम, अवॉइड दिस, इट मे क्रिएट ट्रबल, बिकॉज biological need or emotional need of your breathing is different, and if you try to hold this, it may create trouble. That's why when we prepare this program of yoga for this pandemic, I suggested everyone perform Anuloma Viloma or Ujjayi, but don't go for Kumbhaka, because already pressure is there inside, and if you add more pressure with Kumbhaka, it may create trouble. जब फिजिकल एक्सर्शन हो, जैसे आप भाग के आए और तुरंत प्राणायाम में बैठ गए, ऐसा मत करो।
इमोशनल अपसेट हो, ऐसे वक्त आप प्राणायाम मत करो, बिकॉज अदर टू डिमांड्स ऑन द रेस्पिरेटरी सेंटर. In this situation, if breath control is attempted, the delicate respiratory centers could be adversely affected. So these are contraindications. Some are more. Retention phase is to be gradually increased. अभी आपको रिटेंशन पता चला है, कुंभक पता चला है 1:4:2, लेकिन तुरंत जाकर ये रेशो नहीं इस्तेमाल करना है. रेशो कैसे करना है ये मैंने बता दिया. From breath awareness to ratio, I have given the chart to you. Beginners practice only control inhalation and exhalation. अगर आप beginner हो तो avoid कुंभक, आपको सिर्फ inhalation और exhalation करना है under proper guidance of your teacher. Every phase has to be very smooth and slow. कोई jerk, कोई undue pressure इसमें देना नहीं है. Every stage you have to apply smooth and slowly. तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस प्राणायाम की हमें समझना आवश्यक है. ये तो मैंने कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आपको बता दिए, बट गाइडलाइंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड. इनहेलेशन शुड बी इवन थ्रू आउट पूरक, इवन होना चाहिए. द पूरक मस्ट एंड क्वाइटली. द रेचक मस्ट बी स्लो, अनइंटरप्टेड एंड प्रोलॉन्ग्ड. प्रोलॉन्ग क्यों? क्योंकि रेचक इज ऑलवेज डबल देन पूरक. लेकिन यहां पर ये क्यों बताया गया कि मस्ट बी क्वाइटली एंड स्लो? Because when you exhale and when pressure is there inside your body, you try to exhale forcefully, you try to exhale suddenly, and when you try to exhale suddenly it may create some trouble, and that's why the exhalation, the rechaka must be slow. The whole practice of pranayam should be gone through with utmost ease and comfort. No jerks, no violence, no undue sense of suffocation should be experienced at any stage. अगर ये आप महसूस करते हो तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम दर्शाता है, और इसलिए हमारे जो मास्टर्स थे उन्होंने इंटेलिजेंटली ये 1:4:2 का रेशो यहाँ पर इस्तेमाल किया है. अगर आप रेशो बढ़ाते हो और ये प्रॉब्लम आप फील करते हो तो आपको एक बात याद रखनी है, विदाउट पुटिंग योर ईगो, जस्ट गो अगेन टू द बैक प्रोसेस, previous process, and try to perform. So some more guidelines are there. The mind should be follow the movement of breath. आपका मन हमेशा सांस के ऊपर concentrate होना चाहिए. Under no circumstances should kumbhaka be practiced without jalandhara bandha. If you perform kumbhaka, remember jalandhara bandha is necessary. So first you have to learn how to perform jalandhara. Jalandhara bandha means chin lock. You try to block here. Why it is very necessary? Because pressure is tremendous. If you are not capable to control that pressure, pressure will be more and it may create some trouble at your this skull region, head region. In pranayam, breathing should be done through the nose and not through the mouth. When the nose is closed due to cold, do not inhale or exhale through one nostril. Use both nostrils for inhalation and exhalation. But when it's a problem, अगर सर्दी हुई है आपको, जबरदस्ती प्राणायाम करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि ये आपको तकलीफ दे सकता है. तो यहाँ पर कई प्रकार के कॉशंस हमने देखे, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमने देखे, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमने देखे. तो यहाँ पे समझना हमें ये आवश्यक है कि अननेसेसरी स्ट्रेन और इम्परफेक्ट मेथड्स ऑफ प्राणायाम में डैमेज द नर्व्स, हार्ट एंड लंग्स. टीवी देखकर प्राणायाम मत करना, क्योंकि कई सटल चीजें इसमें हैं जो आपको मालूम नहीं है. प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही आपको प्राणायाम करना है, अदरवाइज डैमेज द नर्व्स, द हार्ट एंड द लंग्स. At one side it is fantastic activity, but at other side, if you don't know the ifs and buts, if you don't know the contraindications, if you don't know the guiding principles, definitely you need your teacher to guide. When rightly performed, pranayam will ensure supreme energy for the body and eternal peace for the mind. कई ancient literatures ये भी बताते हैं कि प्राणायाम ये देव भी किया करते थे, ईश्वर, गॉड्स आल्सो दे परफॉर्म, बिकॉज इट इज वेरी पावरफुल प्रैक्टिस. तो जब प्राणायाम करते हो, हमारी एक गलत धारणा है, पतंजलि ने इसको अष्टांग योग में
डाला है, लेकिन दुनिया में लोगों को ये अष्टांग योग मालूम ही नहीं है, लोगों को सिर्फ त्रयंग योग ही मालूम है। अष्टांग योग हमें मालूम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, लेकिन लोग त्रयंग योग ही समझ रहे हैं। त्रयंग योग मतलब सिर्फ आसन, सिर्फ प्राणायाम और सिर्फ ध्यान, उनको बाकी चीजें मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि प्राणायाम का इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट है, प्राणायाम एक दूसरे के साथ काफी सपोर्टिव है। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, जिसको यम नियम कहा गया है। पोस्चर्स, आसन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राणायाम से पहले आसन आवश्यक है। प्राणायाम ब्रीदिंग प्रैक्टिस तो है ही, प्यूरिफिकेटेड पोस्चर्स भी आवश्यक है, शुद्धि क्रिया और ध्यान के लिए भी प्राणायाम आवश्यक है। तो यहाँ पर एक इंटर रिलेशनशिप है प्राणायाम की। यम नियम भी आवश्यक है प्राणायाम को, आसन तो आवश्यक है ही, because unless and until you don't know how to sit properly without problem to your body, you cannot sit for long duration in pranayam. And kriyas are very very essential, because prana is flowing from the nadis, but if nadis are blocked due to impurity, then although you are performing pranayam, it is useless for you, because your nadis are blocked, and when you perform kriyas, then automatically it is possible to clean your nadis, and once nadis are cleared, then automatically prana will flow from your nadis. Bandhas and mudras are also important, and then these practices will lead to dhyana. So what is the sequence? ऐसा नहीं है क्लास में जाकर तुरंत ध्यान करो, लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत क्लास में बैठो और तुरंत प्राणायाम करो, इट इज नॉट लाइक दैट। What is the sequence? First you should perform asana for stability of your body, then perform shuddhi kriya for cleansing of the nadis or to get purification at nadi level, then perform pranayam with the bandha and mudras, and then go for meditation. You have to follow this sequence when you are in the class, but when you are out of the class, योग सिर्फ 1 और 1.5 घंटे का विषय नहीं है। इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ 1.5 hours, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। जब क्लास में होते हो तब आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, शुद्धि क्रिया, ध्यान करते ही हो, लेकिन जब आप बाहर होते हो उस वक्त यम और नियम का भी पालन आपको करना है। इसलिए एक हायरार्की बताई गई है यस पतंजलि ने। आप इस बात को मानो या मत मानो, यू एक्सेप्ट और यू रिजेक्ट, but reality is that we are spiritual by birth, we are divine by birth. इसलिए first spiritual body should be adaptive with yamas and niyamas, then gross body will be adaptive with asanas, then pranic body will be adaptive with pranayam, then mind can be controlled with dharana, and then meditation will be adaptive, and finally ananda body can be also adaptive. That is the proper integrated approach suggested. तो यहाँ पर बताया गया है, एक beautiful quotation is there from Hatha Pradipika, and that quotation is yuktam yuktam taded vayu yuktam yuktam cha purayat. Here they mentioned what is yukta pranayam and what is ayukta, what is proper and what is improper, and they have given different 7 things to be understood. And if we understand this, it is easy for us to understand which are those the prescribed manner for the practice of pranayam is yukta sthana, you should select proper place. Yukta vidhi, you should select proper technique. Bandha yukti, proper use of bandhas you should know. Yukta abhyasa, proper practice you should know. Yukta kala, proper time when to practice. ऐसा नहीं कि खाना खा लिया वक्त है तो प्राणायाम करते हैं, पेट भरा हुआ है, नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। युक्त आहार, प्राणायाम के लिए कौन सा आहार आवश्यक है, तामसिक आवश्यक है या सात्विक आहार आवश्यक है, ये समझना आवश्यक है। मल शोधन युक्ति, प्रॉपर प्यूरिफिकेशन मींस you have to perform shuddhi kriyas. So here the 2 fundamental principles at least you have to remember why I explained this whole technique of pranayam, and it is mentioned in another text of Hatha Pradipika. I would like to mention this to you. While working on different manuscripts, I found one manuscript which mentioned that Hatha Pradipika contains 10 chapters
And in the world, I found that number of people published 4 chapter pranayam Hatha Pradipika or 5 chapter Hatha Pradipika. But one manuscript, very ancient, I found, Goraksha Siddhanta Sangraha, in which it was mentioned that Hatha Pradipika contains 10 chapters. And then we started searching. And in Rajasthan, Jodhpur Oriental Libraries, I found this manuscript, which is Hatha Pradipika. The beautiful text contains 10 chapters, the unique book you won't find in the world. And this Hatha Pradipika, again, I found one beautiful commentary written by a great master, Balakrishna. And in that Hatha Pradipika, they mentioned 2 very important sutras, which I would like to. One is Chale Vate Chalam Chittam, and second is Yavad Vayu Sthito Dehe. Beautiful quotations, and you will understand why pranayam is very important. What is the meaning of this? When breath is active, mind is also active. We have to remember what is the purpose. Our purpose is stabilization of the mind. And why stabilization of the mind is important? Because if mind is unstable, we have to face different problems in our life. So the first criteria is to stabilize the mind. Patanjali is also talking about yoga chitta vritti nirodha. We have to control the vrittis. So similarly here, when breath is active, mind is also active. But when breath is controlled, mind becomes steady. We directly cannot control the mind. But if breathing is the medium to control the mind, if we control breath, can we control the mind? And answer is yes, definitely. So here they mention, in order to attain mental stability, a yogi should practice control of breath through pranayam. So it means that pranayam is not only related to body, physical body, or pranayam is not only related to physical aspect. Moreover, it is important for mental aspect, emotional aspect, and moreover spiritual aspects as well. So long as the prana remains in the body, the soul does not leave the body. जब तक प्राण इस शरीर में है, तब तक ये आत्मा शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि ये प्राण ही शरीर का कार्य ठीक प्रकार से कर रहा है. इस प्राण को पकड़ लिया, इसका मतलब आपने आत्मा को पकड़ लिया. Your consciousness, it is possible to take hold, and once you are capable to hold this Atman, then there is no death. And that's why प्राणायाम को मृत्यु सुरक्षित रखने का कार्य है, ऐसा भी कहा जाता है. Therefore, प्राण should be controlled by प्राणायाम. इस प्राण के कई फायदे हैं जो कई प्रकार से एंशिएंट टेक्स्ट में बताए गए हैं. तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है प्राणायाम का मतलब क्या है, ब्रेथ, व्हाट इज ब्रेथ, व्हाट इज प्राण, what is the ancient references about prana, and how we can utilize this prana for higher purposes, not only for physical fitness, not only for mental stability, not only for emotional balance, not only for social maturity, but even it is for spiritual upliftment. And that's why pranayam is the soul of hatha yoga practices. And hatha means same, ha and tha. In commentary of written on Hatha Pradipika, which is called Jyotsna, they mentioned a beautiful quotation: Hakarah kirtitah suryah, thakarah chandra uchyate. What is the meaning of hatha? Ha means surya, tha means chandra, surya means right nostril, pingala, chandra means left nostril, ida, which is called tha. When both are merging, when both are coming together, it is hatha yoga. And that's why whole philosophy of hatha yoga is based on those nostril dominance or nostril play. Unfortunately, people consider hatha yoga is physical acrobatic. Sorry to say, but we have to understand what is hatha yoga. So the prime aspect from hatha yoga is pranayam, and prime aspect of yoga is
pranayam as well. It was great, although time was very short, but it was possible to speak something about this concept of pranayam. I would like to convey humble thanks to all the organizers for giving me this opportunity to share some of the ideas mentioned in ancient literature about pranayam. With these words, once again, I would like to convey thank you to all of you, all the participants, and hope to meet you again soon. Om Shantihi, Shantihi, Shantihi. Thank you very much.